بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو خواتین، بچیوں، گرلز، وومین کے لیے نماز کے طریقے پر ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اپنی بچیوں کو دکھانا ہے تاکہ ان کی نماز ٹھیک ہو سکے۔ مسنون طریقہ جو حدیث میں اور ائمہ حدیث نے جو طریقہ کار بتایا ہے کہ خاتون نماز کیسے پڑھے اور وومین نماز کیسے پڑھے، گرلز نماز کیسے پڑھیں، بچیاں ہماری جو ہمارے گھروں میں نمازیں پڑھتی ہیں کچھ وہ طریقہ کار میں پریکٹیکل میں غلطیاں کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس ویڈیو کو غور سے خود بھی دیکھیے اور اپنی بچیوں کو دکھائیے تاکہ ان کی نماز درست ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نماز کا پریکٹیکل طریقہ، یعنی کہ ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز سنت سب سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے نیت کریں گے اور نیت کا طریقہ کار یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نیت کرتی ہوں نماز فجر 2 سنت موقدہ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ آپ نے اللہ اکبر جب کہنا ہے، کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے سیدھا کرنا ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں بالکل قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے، اور آپ نے اپنے شولڈر کے پاس اپنے ہاتھوں کو لے آنا ہے، یہ جو کندھے ہیں آپ کے یہاں تک لے آنا ہے، اور یہاں تک کیونکہ یہ مردوں کا طریقہ ہے، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شولڈر تک اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ یہاں تک بلند کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ کار یہ ہے، اپنی چیسٹ یعنی اپنے سینے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو رکھنا۔ پہلے آپ نے اپنے لیفٹ ہاتھ کو رکھنا ہے سینے کے اوپر، پھر رائٹ ہاتھ کو اس کے اوپر رکھنا ہے، اور اپنے ہاتھ کی کنڈیشن یہ بنانی ہے۔ جب یہ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک سورت ملانی ہے، یعنی سورہ فاتحہ جب پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک سورت ملانی ہے۔ یاد رکھیے گا سورت ایسی ملانی ہے جو دوسری رکعت جو پڑھنی ہے آپ نے، اس رکعت میں جو سورت پڑھنی ہے اس سے تھوڑی سی بڑی سورت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم سورہ کافرون کو تلاوت کرتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب اللہ اکبر یہ رکوع کا ایکشن ہے، رکوع میں ہم نے جانا ہے تو ہم نے اپنی کمر کو، اپنی پیٹھ کو زیادہ نیچے نہیں کرنا، اپنے سر کو زیادہ نیچے نہیں کرنا، اور اپنے ہاتھ جو ہیں اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ دینا ہے، ایسے گھٹنوں کے اوپر رکھ دینا، نیچے زیادہ نہیں جھکنا۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ جب مرد نماز پڑھتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت نارمل طریقے سے ایسے رکوع میں جھکے گی۔ حدیث رسول میں ہے اور ہدایہ میں ہے، کافی بڑی کتابوں کے اندر ہے کہ عورت رکوع کے اندر بالکل نارمل سا اپنے آپ کو کا جھکاؤ کرے گی۔ اس رکوع میں جا کر آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد۔ آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے
आपने बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधे करना है और अपने हाथों को यूं नॉर्मल तरीके से छोड़ देना है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द आपने पढ़ना है। और इस तरीके को कौमा कहते हैं। इस एक्शन को, जिस एक्शन में रुकू के बाद हम इस हालत में खड़े हुए हैं, इस एक्शन को कौमा कहते हैं। अब आपने सजदे में जाना है। मैं बताता हूं कि सजदे में कैसे जाना है। आपने अल्लाहु अकबर, आपने सबसे पहले अपने हाथों को जमीन पर लगाना है, अपने हाथों को जमीन पर रखना है। उसके बाद बिल्कुल सीधे हो जाना है ऐसे, और बैठ जाना है। यानी अपने दोनों पांव को अपनी शरीर से बाहर निकाल देना है। राइट साइड पर दोनों पांव को शरीर से बाहर निकाल देना है और आपने अपनी लेफ्ट हिप पर बैठ जाना है, लेफ्ट शरीर पर बैठ जाना है और राइट साइड पर अपने दोनों बाजू पर दोनों पांव को बाहर निकाल देना है और आपने यूं सजदा करना है, यूं सजदा करना है। जब सजदा करना है आपने अपने इन बाजू को, इस बाजू को आपने बिल्कुल जमीन के साथ चिपटा देना है और अपने पेट को अपनी रानों के साथ बिल्कुल चिपटा देना है। आपने जैसे एक चीज सुकड़ जाती है सजदा करते वक्त, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी और बाकी सहाबा भी फरमाते हैं, जब औरत सजदा करे तो अपने आप को सजदे में सुकेड़ ले, बिल्कुल सुकड़ जाना है। आपने ऐसे सजदा करना है, ऐसे अल्लाहु अकबर, ऐसे। ये सजदा है कि आपने सुकड़ जाना है, बिल्कुल मिल जाना है और अपने पीछे जो हिप है, जो पीठ है, इसको उठाना नहीं है। मर्दों के लिए हुक्म यह है कि मर्द अपनी पीठ को उठाते हैं, लेकिन औरतों के लिए हुक्म यह है कि अपनी पीठ को उठाएं नहीं। और सजदा करते वक्त ख्याल रखना है आपने, इसमें एहतियात जरूर करनी है। बाज हमारी सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर ये चीज़ आजकल एक वीडियो वायरल हो चुकी है कि वो कहते हैं कि नहीं, औरत भी सजदा वैसे करेगी जैसे मर्द सजदा करता है। ऐसी बात नहीं है, अहादीस में मौजूद है। और हजरत अली और हजरत इब्न उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से ये रिवायत मरवी हैं कि उन्होंने हुक्म दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब औरत सजदा करे तो अपने आप को सुकेड़ ले, अपने रानों के साथ, अपने पेट को रानों के साथ मिला ले। ये राने हैं, ये रानों के साथ अपने पेट को मिला ले और अपने बाजू को भी अपनी रानों के साथ मिला ले और जमीन पर बिल्कुल चिमट जाए और सुकड़ कर सजदा करे। सजदे में आपने 3 बार सुब्हान रब्बियल आला कहना है, ऐसे सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। फिर आपने ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों पांव को याद रखिएगा, दोनों पांव को बाहर निकाल लेना है इस तरह से। ये दोनों पांव बाहर निकले हुए हैं, ऐसे आपने बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने थोड़ी सी देर, जब आपकी बिल्कुल बॉडी सीधी हो जाए, बिल्कुल सीधे बैठ जाए, तो उसके बाद फिर दूसरा सजदा करना है। आपने दूसरे सजदे करना भी ऐसे ही करना जैसे मैंने पहला सजदा किया है, उसमें भी आपने 3 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ना है। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर आपने अल्लाहु अकबर कहना है। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाते हैं। दूसरी रकात में भी आपने जब दूसरी रकात पढ़नी है तो दूसरी रकात शुरू करने से पहले हमने जो कि पहली रकात में सना पढ़ी थी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये पढ़ी थी, लेकिन सेकंड रकात में, दूसरी रकात में आपने सना नहीं पढ़नी, बल्कि सूरह फातिहा पढ़नी है। आपने सूरह फातिहा पढ़ने के बाद एक वो सूरत, छोटी सूरत जो पहले वाली सूरत पढ़ी है उससे छोटी सूरत होनी चाहिए, वो पढ़नी है। फॉर एग्जांपल हम सूरह इखलास पढ़ लेते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरत पढ़नी है। फिर रुकू करना है जैसे हमने पहली रकात में रुकू किया है। फिर आपने सजदे करने हैं दो, जैसे पहली रकात में सजदे किए। फिर हमने तशहुद में बैठना है। अब तशहुद में बैठने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तशहुद में भी ऐसे ही बैठना है। आपने दोनों पाँव को यूं बाहर निकाल लेना है,
याद रखिएगा, दोनों पाँव को बाहर निकाल लेना है और बायां सुरीन पर, बाएं हिप की पार्ट पर आपने बैठ जाना है और अपने हाथों को ऐसे रखना है और अपनी नजरों को, यानी आपने अपनी झोली में अपने आगे, अपने बिल्कुल सामने नीचे देखना है और अपने हाथों को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। यह हाथ रखने का तरीका है। उसके बाद आपने अत्तहियात पढ़नी है। मैं अत्तहियात पढ़ देता हूँ ताकि आपको अत्तहियात आ जाए और बच्चे सुन लें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने एक बात याद रखनी है, वो ये है कि जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो उस वक्त एक फिंगर, ये शहादत वाली फिंगर जो है, ये शहादत वाली उंगली, इसको उठा लेना है। उठाना कहाँ है याद रखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। उठाना कहाँ है? अशहदु अन ला, ला पे आपने इस फिंगर को उठा लेना है, इल्लल्लाह पे इस फिंगर को नीचे कर लेना है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ذُرِّيَّتِي रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अब अत्तहियात हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हमने सलाम फेरना है। सलाम फेरने का तरीका यह है कि पहले आपने राइट शोल्डर की तरफ सलाम फेरना है, राइट साइड की तरफ सलाम फेरना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने सलाम फेरते वक्त यूं नहीं देखना, यूं सामने नहीं देखना और यूं भी नहीं, पीछे की तरफ भी नहीं देखना, बल्कि शोल्डर पे देखना, ऐसे नॉर्मल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर दूसरी साइड पे, यानी लेफ्ट साइड पे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन व सामीन, मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी बहनों, ये हमने नमाज का तरीका, ख़वातीन की नमाज का तरीका आपको बताया है और मैं उम्मीद रखता हूँ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो करेंगे और बेल आइकॉन पर क्लिक भी करेंगे और हमारे चैनल को लाइक करें और अच्छी, अगर आपको ये वीडियो लगी है तो उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और सब दोस्तों तक ये हमारा मैसेज, ये हमारी वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें ताकि उनके बच्चों और बच्चियों की जो नमाजें हैं वो दुरुस्त हो सकें। हमारी बच्चियाँ इस वीडियो को देखें और नमाज का ये प्रैक्टिकल तरीका ज़रूर समाप्त करें। इंशाअल्लाह हमारी नमाजें ठीक हो जाएगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वुज़ू के प्रैक्टिकल तरीके के हवाले से बताएंगे कि वुज़ू कैसे किया जाता है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।